Okay, very welcome to all of you students. Now, today we are going to start with the first topic in paper 1, that is angle and its measurement. अब मैथमेटिक्स में 11th स्टैंडर्ड में दो पेपर्स है, मैथ्स पेपर 1 एंड मैथ्स पेपर 2. So we are starting with the first topic under paper 1, which is angle and its measurement. तो सबसे पहले एंगल क्या होता है, what is an angle? So let us define an angle. तो लिखिए, write down definition of angle. Write down a figure obtained by the rotation of a ray about its fixed point. ब्रैकेट में लिख लो आप वर्टेक्स. दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. So a figure that is obtained by the rotation of a ray about its fixed point is called as an angle. ऐसा चाहिए तो लिख लो, is called as an angle. इसको हम एंगल बोलते हैं. ठीक है. Now you see over here, I will draw the representation and explain. ठीक है. A figure that is obtained by the rotation of a ray. अभी आप देखिए, यहाँ पे ये रे है. This is ray OA. Now if this ray is rotated, अगर ये रे को रोटेट कर दिया जाए, तो I will obtain another ray that is nothing but ray OB. See, I have rotated this ray. तो ये जो figure obtained है, this figure obtained is nothing but an angle is being formed. हम बोलते हैं ये जो figure obtained है, तो a figure that is obtained by the rotation of a ray about its fixed point is called as an angle. ये angle form हुआ. तो ये जो O है, this point O, this is called as nothing but the vertex. This ray OA is called as the initial arm. It is called as initial arm or the initial ray, and this is called as the terminal arm or the terminal ray. Initial मतलब जहां से start हुआ, and terminal मतलब जहां पे end हुआ. ठीक है. So what is a angle? A figure that is obtained by the rotation of a ray about its fixed point is called as an angle. तो ये angle form हुआ है AOB. So OA is called as the initial arm or the initial ray also it is called as, and OB is called as the terminal arm or the terminal ray. और ये जो fixed point है, this is called as nothing but vertex. Now you try to understand. अभी आप देखो, ये दो rays है. I'll show you with the help of pens. These two are the rays. तो angle form होगा. कैसे form होगा? जब rotate होगा. Okay, rotation also can be done in two directions. Rotation can be done in anti-clockwise direction or rotation can be done in clockwise direction. वो भी हम बात करेंगे बाद में. रोटेशन कैसे भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है और क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है. तो देखो एंगल फॉर्म, ये एंगल है, ये भी एंगल है. This is also an angle. This is also an angle. So angle is being formed. ठीक है. चलो, please note down this definition along with the diagram. ये diagram भी आप draw कर लीजिए for your reference. Now after this, let us move on to next definition. Write down, that is measure of an angle. ऐसा लिखो आप. Measure, if you want you can number this. ये second लिख लीजिए. Measure of an angle. Next definition, second one, measure of an angle. इसमें लिखो आप, the amount of rotation, the amount
of rotation, the amount of rotation that takes place from the position of initial arm, from the position of initial arm till the position of till the position of the terminal arm gives us the measure of an angle. So what is measure of an angle का definition, students? The amount of rotation that takes place from the position of the initial arm till the position of the terminal arm gives the measure of an angle. So amount of rotation. अभी आप देखो, ये डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूँ पेन के हेल्प से. नाउ रोटेशन अगर 10 डिग्रीज का हुआ तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 10 डिग्री. अगर रोटेशन 20 डिग्रीज का हुआ तो 20 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. रोटेशन अगर 30 डिग्रीज का हुआ तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. रोटेशन अगर 90 डिग्रीज का हुआ तो 90 डिग्री फॉर्म होगा. ठीक है. तो मेजर ऑफ एन एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन टेक्स प्लेस. तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसके हिसाब से हमें जो एंगल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द measure of an angle. So amount of rotation that takes place from the position of the initial arm till the position of the terminal arm gives the measure of an angle. ठीक है. तो measure of an angle होता है. एंगल डिफरेंट मेजर्स के हो सकते हैं. मैंने आपको बताया एंगल 10 डिग्री का भी हो सकता है, एंगल 20 डिग्रीज का भी हो सकता है, एंगल 45 डिग्रीज का भी हो सकता है, एंगल 90 डिग्री का भी हो सकता है. डिफरेंट एंगल हो सकता है मेजर्स. ठीक है. The second is measure of an angle. Now third we are going to see that is nothing but directed angle. Directed angles. ठीक है. अभी एंगल्स के भी डायरेक्शन होते हैं. Angles also have their directions. Let us understand this diagrammatically. ठीक है. चलिए ड्रॉ कर लीजिए आप. Now if you observe, this is the initial arm, this is ray OA. ठीक है. And anti-clockwise rotate, okay, this is ray OB. This is the fixed point O which is called as vertex. Rotation has taken place in anti-clockwise direction, you know, anti-clockwise. So this ray OA is called as the initial arm and the ray OB is called as the terminal arm. ठीक है. Now we have to remember directed angle मतलब एंगल के भी डायरेक्शंस होंगे. ठीक है. अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, ठीक है, from the initial arm till it reaches the position of the terminal arm, the directed angle is said to be positive. Write down. रोटेशन ऐसा लिखो आप. रोटेशन anti-clockwise, rotation anti-clockwise, angle is said to be positive. Angle is said to be positive. अब rotation clockwise भी हो सकता है. ठीक है. So let us see another diagram. So this is initial ray. ये है इनिशियल रे. अभी रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो एंगल कैसे घूमेगा? इट विल टर्न दिस वे. ओके. तो दिस विल बी द टर्मिनल आर्म OB.
नाउ सी द एंगल इज इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यू नो क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। So this is clockwise direction. So this is the initial arm और ये है terminal arm है, ठीक है। तो if the rotation is clockwise, ऐसा लिख लो आप नीचे, rotation is clockwise, angle is negative, ठीक है। write down and I will bifurcate this into two parts, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं ना। So if the rotation, I will explain you again with the help of these two pens, ठीक है। अब देखो, if the rotation is in anti-clockwise direction, अगर anti-clockwise direction है तो angle is said to be positive। अगर rotation clockwise हुआ, if the rotation, you can see this pen rotating, if the rotation is in clockwise direction, angle is said to be negative। तो anti-clockwise rotation होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा एंड क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो एंगल विल बी सेड टू बी नेगेटिव, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज इफ आई राइट डाउन ओनली 30 डिग्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली 30 डिग्रीज लिखा और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा -30 डिग्रीज, तो एंगल जो फॉर्म हुआ वो 30 डिग्रीज का ही है। इन बोथ द केसेस the angle that is being formed, it is of 30 degrees only, but this is plus 30 degree and this is minus 30 degree. So what does this say? Plus 30 degree means the rotation is anti-clockwise, ये 30 degree का angle है, and minus 30 degree, ये जो minus 30 degree है means इसका जो rotation है, that rotation is nothing but clockwise, ऐसा है, ये minus 30 angle है और ये plus 30 angle है, that is the difference। तो angle positive है means the rotation is anti-clockwise and angle negative है means the rotation is clockwise। So this is a very important concept of directed angle। angle का भी sense होता है, angle का भी direction होता है, anti-clockwise and clockwise। So I hope this concept is understood to all। directed angles, please note down। So we have seen three things। सबसे पहले तो हमने एंगल का डेफिनेशन देखा, व्हाट इज एन एंगल, अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज एन एंगल। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। तो व्हाट इज मेजर ऑफ एन एंगल, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल आर्म till it reaches the position of the terminal arm gives the measure of an angle। different measures हो सकते हैं एंगल के, 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees and so on। फिर थर्ड हमने देखा डायरेक्टेड एंगल्स। तो एंगल के डायरेक्शंस होते हैं, which two directions, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज the angle is said to be positive or the sense of the angle is taken positive, and if the rotation is in clockwise direction then the angle is said to be negative। I have explained you with the help of an example। चलिए please note down this for your reference, लिख लीजिए आप इसको। Now let us continue with that। now we are going to see types of angles। तो लिखिए next heading, write down under this types of angles, ठीक है। now types of angles lower standards में आप familiar है, obtuse angle, acute angle, right angle, ठीक है। so we are familiar with many types of angles। so now we are going to learn some types of angles which are important and required। चलिए तो सबसे पहले आप लिखिए first type of angle is called as an zero angle, ठीक है। now I will explain you diagrammatically, इसका definition लिखने की जरूरत नहीं है हमें। now zero angle, now zero angle means what, there is no rotation taking place।
ठीक है, आई विल शो यू डायग्रामेटिकली। अब देखिए ये इनिशियल आर्म है, दिस इज रे ओ ए, ठीक है, दिस इज रे ओ ए। अभी दूसरा एक रे है विच इज रे ओ बी, and if there is no rotation taking place, if there is no rotation taking place, तो कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा, means the angle that is formed is zero, that is why it is called as a zero angle। अभी आप देखिए ये the blue marker and the black marker, their position is same, there is no rotation taking place, ना ऐसा रोटेट हो रहा है वो, ना ऐसा रोटेट हो रहा है, there is no rotation taking place, मतलब दोनों का पोजीशन सेम है, तो जीरो एंगल फॉर्म होगा। तो द एंगल दैट इज फॉर्म इज कॉल्ड एज एन जीरो एंगल, मतलब दोनों रे जो है उनका पोजीशन सेम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन जीरो एंगल। बहुत सिंपल है, ठीक है, जीरो एंगल का डेफिनेशन। नेक्स्ट, आफ्टर जीरो एंगल द सेकेंड डेफिनेशन इज दैट नथिंग बट ऑफ राइट एंगल। Now I don't have to explain you much, right angle is already known to us। तो राइट एंगल कैसे होता है, दिस इज राइट एंगल, ठीक है। चलो ऐसा नहीं ड्रॉ करते हैं, पहले हम इनिशियल आर्म ड्रॉ कर लेते हैं। चेक आउट दिस, दिस इज द इनिशियल आर्म ओ ए एंड दिस विल बी द टर्मिनल आर्म ओ बी। ये इनिशियल आर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ आई डॉट ए, एंड दिस इज द टर्मिनल आर्म ओ बी, ठीक है। तो जो एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल is measuring 90 degrees, ठीक है, that is called as nothing but an right angle। ये देखिए आप, ठीक है, if these are the two rays OA, if this ray is rotated in anti-clockwise direction, right angle form होगा, ठीक है, 90 degrees angle will be formed, so such an angle is called as an right angle, ठीक है। फिर next third type of angle होता है straight angle। The third type of angle is called as an straight angle। अभी straight angle में क्या होता है, देखो, observe over here, this is the initial arm OA, this is initial arm। Now when the rotation takes place, so terminal arm, this is terminal arm OB, terminal arm, so rotation has taken place from initial arm till it reaches the position of the terminal arm, so angle is being formed। So now you observe ये दो ऐसे pens है। Now if these two pens are kept this way and if this ray is rotated over here, इसको rotate किया, ऐसा rotate किया, and this position I have reached, तो एक straight line form हो गया, so the angle that is formed is called as an straight angle। अच्छा, if the rotation is in anti-clockwise direction, this is anti-clockwise direction, if the rotation is in anti-clockwise direction, this angle will measure 180 degrees, and if the rotation is in clockwise direction, so it is minus 180 degrees। देखो अगर ऐसा रोटेट हुआ, आई एम गोइंग स्लो इन एक्सप्लेनेशन, ऐसा रोटेट हुआ तो 180 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, एंड अगर ऐसा रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो इट विल बी minus 180 degrees। Anti-clockwise the angle is positive and clockwise the angle is said to be negative। यह है डायरेक्टेड एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर फोर्थ टाइप ऑफ एंगल होता है दैट इज नथिंग बट होल एंगल, होल एंगल, और समटाइम्स ऑल्सो नोन एज वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल, दोनों नाम से बुलाते हैं उसको, होल एंगल और वन रोटेशन एंगल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड होल एंगल, वन रोटेशन, अंडरस्टूड, नाम से मालूम पड़ जाता है, बट देन स्टिल इफ दिस इज द इनिशियल आर्म ओ ए, ठीक है। अभी आप देखो ये जो इनिशियल आर्म ओ ए है, अगर ये रोटेट हुआ, इफ इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ऐसा रोटेट हो रहा है, अब रोटेट होके एक पूरा रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा और वापस ओ ए वाले पोजीशन पे आ जाएगा,
one complete rotation when it takes place and when it reaches the same position. So if that rotation that takes place in anti-clockwise direction and whole angle is being formed, so this whole angle will measure nothing but 360 degrees, 360 डिग्री से घूम गया. So initial arm and the terminal arm is at the same place, but after completing one rotation. यहाँ पे भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जीरो एंगल में भी जो इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम है, बट जीरो एंगल में रोटेशन हुआ ही नहीं, ये रोटेट ही नहीं हुआ, सेम पोजीशन पे रह गया, तो जीरो एंगल फॉर्म हो गया. बट वेराज इन होल एंगल ये पूरा ऐसा रोटेट हो गया, सेम ऐसा रोटेट होके ऐसा इसके नीचे आ गया. होल वन कंप्लीट रोटेशन इज डन. So one complete rotation is done, so it is called as an whole angle, or it is also known as one rotation angle. Anti-clockwise अगर rotate हुआ तो it will be positive 360 degrees. अगर rotation clockwise हुआ तो it will be minus 360 degrees होता है. ठीक है. So types of angles we have done these four. Zero angle, no rotation taking place. Right angle 90 डिग्री. यू नो राइट एंगल में कितना डिग्री मेजर होता है? 90 डिग्री मेजर होता है. अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव 90 डिग्री, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो इट विल बी माइनस 90 डिग्री. ठीक है. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया, तो इट मेजर्स 180 डिग्री. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव 180, क्लॉकवाइज नेगेटिव 180 डिग्री. and whole angle or sometimes also known as one rotation angle, मतलब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया तो इट विल मेजर 360 डिग्री और माइनस 360 डिग्री. एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव 360, क्लॉकवाइज अगर घुमा तो माइनस 360 डिग्री. जस्ट नोट डाउन दीज टाइप्स ऑफ एंगल्स और उसके डायग्राम्स आप ड्रॉ कर लो. दैट्स इट. So next definition that we next type of angle. ठीक है. Next type of angle पे जाते हैं. That will be the fifth one. मैडम fifth angle लिखिए आप. Standard angle. Standard angle, sometimes also known as angle in standard पोजीशन, ऐसा भी बोलते हैं इसको. स्टैंडर्ड एंगल भी बोलते हैं या एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन भी बोलते हैं. नाउ जस्ट पे अटेंशन, आप बाद में लिख लेना. जैसे ये मैंने चार पहले लिख के दिए, पहले एक्सप्लेन किए फिर आपने लिखा. नाउ जस्ट लेट मी एक्सप्लेन देन यू विल राइट डाउन. ओके. स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? नाउ ऑब्जर्व, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. This is x axis and this is y axis. This is the origin. तो इसको हम नाम देते हैं x o x dash और इसको हम नाम देते हैं y o y dash. ठीक है. x o x dash and y o y dash. We have drawn x axis and y axis. Now what is angle in a standard position? Now angle in a standard position or standard angle is that angle whose initial arm is along the positive direction of x axis. ये देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. This is the initial arm. इसको हम बोल देते हैं OA. Initial arm is along the positive direction of x axis and the vertex is at origin. The vertex is at origin. Such an angle is called as an standard angle. अच्छा, इसका जो टर्मिनल आर्म है, आप बोलोगे कि सर इसका टर्मिनल आर्म किधर है? तो टर्मिनल आर्म किधर भी हो सकता है. टर्मिनल आर्म कैन बी ओवर हियर, टर्मिनल आर्म कैन बी, जैसा जितना रोटेट होगा टर्मिनल आर्म कैन बी ओवर हियर, टर्मिनल आर्म ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. जैसा रोटेशन होगा उसके हिसाब से टर्मिनल आर्म होगा. इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज आल्सो. टर्मिनल आर्म कैन बी इन आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट कैन बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? और एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन दैट द इनिशियल आर्म or the initial ray is along the positive direction of x-axis and the vertex is at origin. Such an angle is called as an standard angle. तो चलिए ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है.
Now see, this is positive direction of x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis and this is negative y-axis होता है. Okay, चलो please draw this. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर लीजिए. तो स्टैंडर्ड एंगल मींस इनिशियल आर्म, ऐसा मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए. राइट डाउन इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म along positive x-axis, along positive x-axis and vertex at origin. So such an angle is called as a standard angle. इनिशियल आर्म कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्सिस पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एनीवेयर यू नो. नाउ यू नो दैट जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, द प्लेन गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड दोज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंट्स. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. रिकलेक्ट, वी हैव डन इट इन 10th स्टैंडर्ड इन ट्रिग्नोमेट्री. क्वाड्रेंट सिस्टम हमने सीखा हुआ है. तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अब now whatever we are going to talk about the standard angles only. तो ये स्टैंडर्ड एंगल का डेफिनेशन हो गया. अभी आप लिखिए sixth type of angle after standard angle is nothing but angle in a quadrant. Write down angle in a quadrant. Now the name itself says, नाम खुद ही बताता है, angle in a quadrant. मतलब एंगल, ऐसा वाला एंगल जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग दिस. अभी आप देखिए, वापस एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं आपके रेफरेंस के लिए. अगेन आई एम ड्रॉइंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज नथिंग बट एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज नथिंग बट वाई ओ वाई डैश. अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट मतलब स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड है. Now what will happen, the initial arm, now observe diagrammatically, initial arm I'll show you with different colors. Initial arm जो है, let us take this initial arm to be OA. Initial arm is along the positive direction of x-axis, ठीक है, and the terminal arm, okay, what will happen students, terminal arm can be in the first quadrant. ये देखो, टर्मिनल आर्म, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो इफ दिस एंगल इज बीइंग फॉर्म, जिसको हम रे ओपी नाम दे देते हैं, दिस इज द इनिशियल आर्म OA एंड दिस इज द टर्मिनल आर्म OP. तो दिस एंगल AOP, दिस एंगल AOP, this angle AOP is said to lie in which quadrant? So this angle is in first quadrant. This angle is in first quadrant. So angle in a quadrant means initial arm is along the positive direction of x-axis and the terminal arm is in the first quadrant. Then the angle AOP is said to lie in first quadrant. अभी इसी डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. नाउ लेट अस टेक, आई एम यूजिंग अ रेड कलर. नाउ लेट अस टेक दिस रे OQ. दिस इज रे OQ ले लेते हैं. फिक्स पॉइंट, वर्टेक्स विल रिमेन सेम. नाउ सिट दिस एंगल XOQ, AOQ you can say, angle AOQ. This angle AOQ is said to lie in which quadrant? So it is said to lie in second quadrant. So angle AOQ is in nothing but second quadrant में lie कर रहा है. Rotation I have taken it in anti-clockwise direction. चलो अभी next let us come on to the third quadrant पे आ जाते हैं. Let us take this let us take this ray, say maybe OR, ये वाला रे ले लेते हैं.
Now see, the rotation is in anti-clockwise direction. So angle AOR, देखो मैं लिख देता हूँ, angle AOR. So this angle AOR is said to lie in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो एंगल रोटेशन होने के बाद. एंड फाइनली आई टेक द रे OS ले लेते हैं, एक नाम OS दे देते हैं. नाउ सी दिस रोटेशन which is again I am taking in anti-clockwise direction. So angle AOS is said to lie in fourth quadrant. So angle AOS is said to lie in fourth quadrant. So angles in a quadrant. So this angle AOP is said to lie in fourth quadrant क्योंकि उसका जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. एंगल AOQ या आप XOQ बोलो, दैट एंगल इज सेट टू लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्योंकि उसका जो टर्मिनल आर्म है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है. एंगल AOR इज सेट टू लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि इसका टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है. एंड एंगल AOS, दिस एंगल AOS is said to lie in fourth quadrant क्योंकि इसका टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है. So angle in a quadrant. Please note down these two things, fifth and the sixth. But please remember ये सब स्टैंडर्ड एंगल है. एंगल AOP, AOX, AOQ, AOR, AOS, they are all the standard angles. Means उसका जो इनिशियल आर्म है it is on the positive x axis. टर्मिनल आर्म किसी भी एक क्वाड्रेंट में होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट. So that is angle in a quadrant. Okay, चलो please note down. So after the sixth one, the seventh one you write down. Seventh type of angle, it is called as quadrantal angle. इसको हम बोलते हैं quadrantal angle. ठीक है, तो what is an quadrantal angle? Let me explain. अच्छा, अभी मैं वापस coordinate axis draw कर लेता हूँ. Small coordinate axis I draw over here. Now as we all know that ये हमारा x axis है और ये हमारा y axis है. And this is the origin. This is XOX dash and this is YOY dash. Now quadrantal angle. So the angle is said to be quadrantal if the angle is in the standard position. मतलब जो initial arm है, initial arm is along the positive x axis. Initial arm, say OA, is along the positive x axis and the terminal arm lies on the axis. लिख लो, write down quadrantal angle. Initial arm, अच्छा ऐसा लिख लो, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. स्टैंडर्ड पोजीशन मीन्स इनिशियल आर्म इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड terminal arm lies on x axis और y axis. जो टर्मिनल आर्म है वो एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, या तो x एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस पे लाई करेगा. से फॉर एग्जांपल इफ द टर्मिनल आर्म इज ऑन y एक्सिस. अभी ये देखो, इसको मैं ब्लैक से कलर करता हूँ. आई टेक दिस. तो एंगल टर्मिनल आर्म यहाँ पे हम ले लेते हैं OP. तो दिस एंगल AOP जो राइट एंगल फॉर्म हुआ है, दिस एंगल AOP, this is called as an quadrantal angle because the initial arm is on the positive x axis and the terminal arm is on y axis. So angle AOP is called as an quadrantal angle. Suppose if the angle is on
नेगेटिव एक्स एक्सिस ये एंगल है, ये रे है, दिस इज द टर्मिनल आर्म नाउ। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं ओ क्यू। नाउ यू सी दिस एंगल ए ओ क्यू, ऐसा this angle AOQ is called as an quadrantal angle. Why? Initial arm is on the positive x-axis and the terminal arm is also on x-axis, but it is on negative x-axis. फिर आप ये देखो, ये वाला जो एंगल है, this वाला एंगल, ठीक है, तो this angle is also a quadrantal angle. इसको हम नाम दे देते हैं R, ray OR. Let us name this as ray OR. This is a quadrantal angle. And again जब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आके वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो एन क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब जो इनिशियल आर्म का पोजीशन है सेम पूरा रोटेट होके जब टर्मिनल आर्म मिल जाता है सेम पोजीशन पे, तो इट इज कॉल्ड एज एन क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये चारों क्वाड्रेंटल एंगल है। नाउ यू ऑब्जर्व क्वाड्रेंटल एंगल्स दे आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये देखो एंगल AOP 90 डिग्री, AOQ, this angle AOQ measures 180 डिग्री, 180 भी 90 का मल्टीपल है। फिर एंगल AOR देखो ऐसा रोटेट होके, ये जो एंगल AOR मिलेगा आपको, वो मैं पेन से ऐसा करूंगा ना तो रब हो जाएगा पूरा AOR। दिस एंगल मेजर्स नथिंग बट 270 डिग्री, वो भी 90 का मल्टीपल है। और जब पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल मेजर 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंटल एंगल आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। वो मैं लिख के दूंगा, चलो आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और इतना लिख दो, राइट डाउन दिस मच। स्पेस फॉर राइटिंग क्वाड्रेंटल एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऐसा लिख लो। दे आर, ऐसा लिख लो, दे आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दे आर multiple of 90 degrees. They means quadrantal angles are multiple of 90 degree, 90, 180, 270, 360 and so on it continues. ठीक है, सो यहाँ तक तो होल एंगल तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड एंगल वेरी इंपॉर्टेंट, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजिशन। तो इनिशियल आर्म इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and the vortex is at origin, such an angle is called as an standard angle. मैं स्लो जा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एंगल इन अ क्वाड्रेंट, तो जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म होगा, एंगल तो स्टैंडर्ड पोजीशन में ही होगा। नाउ ऑनवर्ड्स एंगल विल बी ऑलवेज इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर टर्मिनल आर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन fourth quadrant. And quadrantal angle means initial arm is along the positive direction of x-axis and the terminal arm lies on axis itself, x-axis या y-axis पर ही lie करेगा। Such an angle is called as an quadrantal angle, and quadrantal angles they are multiple of 90 degrees. Okay, please make a note of all these things, very important है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड ऑल दैट, यू नो, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम। So write down next type of angle, that is nothing but co-terminal angles. So very important. Please put 3 star at least for this. Types of angles में लिखिए आप co-terminal angles. अच्छा, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन दे देता हूँ co-terminal angles का, then we will see with the help of an example. Okay, so write down any two, लिखिए आप, any two directed angles, any two directed angles of different measures are said to be coterminal, are said to be coterminal if and only if
only if their position of initial arm, if the position of their initial arm and terminal arm is same. ठीक है, राइट डाउन। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? एनी टू डायरेक्टेड एंगल्स, कैसे एंगल? एनी टू डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। If any two directed angle of different measures are said to be coterminal if and only if their position of the initial arm and the terminal arm is same. अच्छा, अभी ये डेफिनेशन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज डू हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। Okay, now you know that angles are generally denoted by the notation theta. थीटा नोटेशन हम यूज करते हैं एंगल्स को डिनोट करने के लिए। नाउ जस्ट लेट मी एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली, देन यू कैन ड्रॉ दिस। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक ओवर। अभी सपोज मैंने थीटा 1 एंगल ले लिया। थीटा 1 आई हैव टेकन द एंगल से 30 डिग्री एंड थीटा 2 दूसरा एंगल ले लिया -330 डिग्री। These are the two angles that I have taken, theta 1 and theta 2. Now they are two different angles and they are directed angles of different measures. दोनों directed angles हैं और दोनों different measures वाले हैं। Now let us draw them. Just have a look. अब सबसे पहले theta 1 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम means figure. So now initial arm. Check out OA. This is the initial arm. शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इनिशियल आर्म। अब 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, तो रफ डायग्राम वी ड्रॉ। प्रोट्रैक्टर हम यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ दैट 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो ये 30 डिग्री एंगल है। नाउ सी द एंगल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 30 डिग्रीज है, तो द रोटेशन इज डन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल AOB, मेजर एंगल AOB is nothing but 30 डिग्री। तो ये इसका इनिशियल आर्म है और 30 डिग्रीज का जो टर्मिनल आर्म है दैट इज OB। नाउ यू सी थीटा 2 ड्रॉ करना है, तो आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन टू एक्सप्लेन। थीटा 2 इज -330। नाउ सिंस देयर इज अ माइनस साइन, वी नो दैट इट इज गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज। तो देखिए इनिशियल आर्म का तो पोजीशन सेम रहेगा। Now when I start rotating, see 330 -330 माइनस मीन्स क्लॉकवाइज जाना है हमें, तो देखो ऐसा रोटेट होगा। तो ऐसा रोटेट होके जब यहाँ पे आएगा तो इट विल अगेन सेम कम टू द पोजीशन ऑफ OB। तो देखो ये जो एंगल फॉर्म होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल मेजर 330 डिग्री एंड सिंस इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो हम लिखेंगे -330 डिग्री। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है कोटर्मिनल एंगल्स का? एनी टू डायरेक्टेड एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल if and only if their position of the initial arm and the terminal arm is same. अभी आप देखो जो 30 डिग्री का इनिशियल आर्म है और ये जो टर्मिनल आर्म है वही -330 डिग्री का है। -330 डिग्री का इनिशियल आर्म भी सेम है और -330 डिग्री का टर्मिनल आर्म भी सेम है। -330 डिग्री अगर कंप्लीटली रोटेट हो गया तो -360 हो जाएगा। तो कितना कम है? -360 से 30 कम जा रहा है। तो दोनों का जो इनिशियल आर्म है, ये दोनों एंगल्स का जो इनिशियल आर्म है और ये दोनों का जो टर्मिनल आर्म है, उनका पोजीशन सेम है। दैट इज व्हाई सच अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी कोटर्मिनल। ये देखो क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा ना तो ऐसा रोटेट होगा, ऐसा इट विल रोटेट इन दिस मैनर क्लॉकवाइज। तो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम है। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन से। चलो डेफिनेशन लिख लो एंड राइट डाउन दिस एग्जांपल विद द डायग्राम। डायग्राम के साथ लिख लो आप एग्जांपल को।
प्लीज मेक अ नोट, फिर और एक मेरे को आपको पॉइंट देना है, वो भी देता हूँ। चलो नाउ, हमेशा हम क्या करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमेशा हम डायग्राम ड्रॉ करके नहीं करेंगे। विल नॉट ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम टू फाइंड आउट whether the angles are co-terminal or they are non-co-terminal. So then what do we do? Co-terminal angles है कि नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? दूसरा तरीका क्या है अगर हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे तो? राइट डाउन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन। ये को-टर्मिनल का डेफिनेशन ही है। राइट डाउन, देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन if difference between measure of two directed angles, ठीक है, if difference between measure of two directed angles is multiple of, or you can say is integral multiple of, ऐसा लिखो, is integral multiple of 360 degrees. If the difference between the measure of two directed angles is integral multiple of 60 degree, 360 degrees, then given pair of angle is said to be co-terminal. Is said to be co-terminal. Don't worry, I'll explain. मैं आपको explain करूँ। अभी difference find करना है। Now see over here, we are going to find out the difference between the two angles. Greater angle minus the smaller angle. So just pay attention. यही example ले ले रहे हैं हम। So therefore θ1 minus θ2, greater minus the smaller. ये positive है, ये negative है। So θ1, how much is θ1 students? So θ1 is nothing but 30 degrees minus how much is θ2? So θ2 is minus 330 degrees. So minus of minus plus हो जाएगा। So this is 30 degrees plus 330 degrees. So therefore θ1 minus θ2 is nothing but 360 degrees. So just for your reference, θ1 minus θ2 is 1 times of 360 degrees ना, तो it is a multiple of 360. देखो क्या बोलता है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ही है। if difference between measure of two directed angles, difference तो subtract करना पड़ेगा, if difference between measure of the two directed angles is integral multiple means 1 time of 360, 2 times of 360, 3 times, 4 times, 5 times, integral multiple of 360 degrees होगा, then the given pair of angle is said to be co-terminal. ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। This is for your explanation. I have drawn the diagram. Now onwards, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा the angles are co-terminal? So we will find out the difference between the two angles. अगर वो 360 का मल्टीपल आया तो it will be co-terminal. अगर 360 का मल्टीपल नहीं आया तो the angle will be said to be non-co-terminal. ठीक है, चलो राइट डाउन। तो ये तो नोट भी लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। राइट डाउन नोट, if it is not a multiple of 360 degrees, then it is not co-terminal, it is non-co-terminal.
then the given pair of angle is said to be नॉन कोटर्मिनल. कोटर्मिनल होने के लिए 360 का मल्टीपल होना चाहिए. 360, 720, 1080, ये सब 360 के मल्टीपल्स है. यू नो मल्टीपल मल्टीप्लाई होने वाला. So if it is not a multiple of 360 degrees, then the given pair of angle will be non-coterminal angle. So I hope very important definition coterminal angle का ये definition है. ये diagrammatically explain किया. Difference find करके भी मैंने आपको explain किया how to find out whether the given angle is coterminal or not. Exercise में हमें ऐसे problems करने हैं. We have to do this kind of problems in the exercise. Please make a note of this. Coterminal angles. So now after seeing the types of angles, now let us move on to the next part of the topic. Write down. लिखिए आप system of measuring angles. अब different systems होते हैं angles को measure करने के लिए. The system of measuring the angles. Write down. First system, it is called as don't worry, I'll write down. I'll tell you what it is. It is read as sexagesimal system. Okay, first one, it is called as sexagesimal system. And second system you write down, it is called as circular system. We'll see one by one. दो सिस्टम होते हैं एंगल मेजर करने के लिए. एक होता है sexagesimal system and another system is called as circular system. These are the two systems for measuring the angle. Now let us first see about the sexagesimal system. Okay, so लिखिए on the next line the first one, write down sexagesimal system. ठीक है, write down. In this system, ऐसा लिखो आप आपके रेफरेंस के लिए. In this system, angles are measured. Angles are measured in form of degree. In this system, angles are measured in form of degrees, and 1 degree is denoted by the notation. ये 1 degree का notation है. ठीक है. In this system, angles are measured in form of degree and 1 degree is denoted by the notation. ये 1 degree का symbol है. ठीक है. Now recollect in lower standards जब हमने trigonometry किया है तो you are familiar, हम लिखते हैं ना 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. We have done trigonometric table. तो degree system already हमें पता है ना. तो उसको खाली नाम जो दिया गया है that is called as sexagesimal system. Same thing. So in this system, angles are measured in form of degree and 1 degree is denoted by this notation. अच्छा, अभी देखो क्या होता है. I will explain you diagrammatically. Pay attention over here. Now, when one rotation takes place, जब एक पूरा rotation complete होता है, तो हमको 360 degrees मिलता है, 360 degree rotation. Now see over here, 0 degree rotation starts from here. ठीक है, ये 0 degrees है. This is 90 degrees. चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. अंडरस्टैंड दिस वे. यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 0 degree एंगल. यहाँ से स्टार्ट होगा रोटेशन. हियर वी विल हैव 90 degree रोटेशन. दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ये ओरिजिन है, ये एक्स ओ एक्स डैश है एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश है. ठीक है ना. तो 0 degree, 90 degree, this rotation will be, यहाँ पे लिखूंगा 180 degrees. ये रोटेशन यहाँ पे 270 degrees
दिस विल बी, जब वापस आ जाएगा तो इट विल बी 360 डिग्रीज का रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। वन कंप्लीट रोटेशन विल मेजर 360 डिग्रीज। देखो आप, विद द हेल्प ऑफ स्केल आई विल एक्सप्लेन। कैसा रोटेट हुआ, तो वन कंप्लीट रोटेशन will give us nothing but 360 degrees. So 0 to 90 degree, first quadrant, 90 to 180, second quadrant, 180 to 270, third quadrant, 270 to 360, this is fourth quadrant. ठीक है, तो ये रोटेशन हो गया। Now you observe that ये जो सर्कल है, this is divided into small equal parts. ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। डोंट वरी, आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू वन इमेज आल्सो। दिस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। ये जो सर्कल है ना, इसके कितने पार्ट्स किए हैं, 300। So what I was saying is that this circle is divided into 360 equal parts. 360 पार्ट में इसको टोटली डिवाइड किया गया है। अब इसमें से जो एक पार्ट है, जस्ट ड्रॉ इट फॉर योर रेफरेंस, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस ओवर हियर, दिस एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल मेजर नथिंग बट 1 डिग्री। ऐसे एक एक डिग्री को जब हम कलेक्ट करते जाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट नथिंग बट 360 डिग्रीज। 1 डिग्री विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ आई विल शेयर वन इमेज विथ यू of a pro circle and I will try to show you the ये जो डिविजन वाला पार्ट है, मैं आपको शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। So just give me a minute to share my screen. Okay, students, now you can see my screen. ये देखो, this instrument which you can see on your screen, थोड़ा पहले मैं इसको zoom out कर देता हूँ। So the instrument that you can see on your screen, it is called as a pro circle. So देखो, we know that circle means it is 360 degrees. Now see, I'll zoom this in. Zoom in करता हूँ मैं। अब देखो, यहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट होता है। See my cursor. यहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट होता है, then 0 to 10 डिग्री। Now see, it is divided into small small parts. छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो इसको, तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30। जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होगा, when the complete rotation it takes place, so it completes nothing but 360 degrees complete करता है। See, once again I'll zoom in. आप देख लो कितने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। See this 0 to 10 डिग्री दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखिए। 0 डिग्री के बाजू में जो पहला वाला डैश है, पहला वाला जो लाइन है, that is nothing but 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाजू में देखो 2 डिग्री, सी माय कर्सर, 2 डिग्री के बाजू में 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये छोटे छोटे मेजर्स है। सी हाउ मच इट इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये इसका डिवीजन है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था स्क्रीन पे, आई मीन टू से बोर्ड पे, वैसा ही है एग्जैक्टली। इट इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ओके, so I stop this share and we come back again to the board after this. Okay, see this. So I have shown you by the screen sharing। ये देखो, एक जो छोटा सा पार्ट है उसका, this is called as nothing but 1 डिग्री। मैंने आपको बताया 1 डिग्री कितना छोटा होता है। ठीक है ना। So now let us write down few points that are required and they are important for us। ठीक है, अब इसको जो सर्कल है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन 1 by 360th पार्ट, राइट डाउन 1 by 360th पार्ट of one complete rotation, one complete rotation, 1 by 360th part of one complete rotation is called as 1 degree। Right on first point,
मीन्स 360 का जो एक पार्ट है 1/360th पार्ट, मतलब ये जो आपको दिख रहा है डायग्रामेटिकली विच यू कैन ऑब्जर्व, छोटा सा 1 डिग्री है, तो 1/360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अभी सेकेंड पॉइंट लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अब देखो ये 1 डिग्री तो समझ में आ गया, 1 डिग्री कैसे मिला। नाउ ऑब्जर्व ओवर हियर, अभी 1 डिग्री में बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, यू कैन ऑब्जर्व 1 डिग्री इज सो स्मॉल, अब उतने स्मॉल में समझ में नहीं आएगा, तो व्हाट आई डू, ये 1 डिग्री को ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज 1 डिग्री, आई हैव ड्रॉन इट बिगर। नाउ दिस 1 डिग्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया है, 60। 1 डिग्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। राइट डाउन, सेकंड रिलेशन लिखो आप, 1/60th part, write down 1/60th part of 1 degree, 1/60th part of 1 degree is called as 1 minute, and denoted as, and it is denoted as 1 and dash, 1 मिनट का सिंबल है। 1/60th पार्ट मतलब इसका जो एक पार्ट है ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, देखो 1 डिग्री इटसेल्फ कितना छोटा है, आई हैव शोन यू ऑन द प्रो सर्कल, तो इसका जो एक पार्ट है, अभी तो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, इसका जो एक पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट 1 मिनट, इसका 1/60th, आप सोचो, है ना, आई कैंट शो यू डायग्रामेटिकली ऑल्सो, नहीं तो जस्ट रफ डायग्राम है, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, एक डिग्री का जो 60th पार्ट है that is called as nothing but 1 minute, and 1 minute is denoted by the notation 1 और ऊपर डैश 1 minute। ठीक है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, दिस इज नॉट दैट अपना घड़ी टाइम वाला मिनट नहीं है, ये डिग्री मिनट है। अभी थर्ड लिखो, थर्ड वन। अच्छा, नाउ बिफोर द थर्ड वन अगेन सी ओवर हियर, नाउ यू सी दिस इज 1 मिनट, नाउ दिस 1 मिनट, अब ये 1 मिनट को मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ वापस, this is 1 minute, now this 1 minute is again divided into 60 equal parts, छोटे छोटे 60 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया है। ठीक है, अभी जो इसका एक पार्ट है, 1 पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, 1 मिनट का जो ये एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट 1 सेकेंड, तो राइट डाउन 1/60th part, 1/60th part of 1 minute is called as 1 second, is called as 1 second, and is denoted as 1 double dash, 1 सेकेंड का नोटेशन है ऐसा, तो 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड एज नथिंग बट 1 सेकेंड। ठीक है, लिख लो, और चाहिए तो वो डायग्राम भी ड्रॉ कर लो आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो सी ओवर हियर, सेक्साडेसिमल सिस्टम, आई रिपीट, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ डिग्री, एंड 1 डिग्री इज डिनोटेड बाय द नोटेशन, ये 1 डिग्री का नोटेशन है। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल मतलब 360 डिग्रीज कंप्लीट हो गया, 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। फिर 1 डिग्री को वापस 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड एज 1 मिनट, एंड ये 1 मिनट का नोटेशन है, 1 डैश। देन 1 मिनट is again divided into 60 equal parts, so 1/60th part of 1 minute is called as 1 second, and it is denoted by this notation 1 double dash। ठीक है, ये मिनट और सेकेंड वो अपना घड़ी वाला मिनट एंड सेकेंड नहीं है, दिस इज नॉट दैट मिनट एंड सेकेंड। अच्छा, तो नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व ओवर हियर, हमें एक रिलेशन मिलता है, डिग्री
मिनट एंड मिनट सेकंड में रिलेशन मिलता है, तो जस्ट राइट डाउन, ऐसा आप लिखो। इसके बाद 1 डिग्री, राइट डाउन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। एंड 1 मिनट is nothing but equal to 60 seconds. So 1 degree is divided into 60 equal parts. So 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds होता है। Very important relation between degree to minute and minute to seconds. तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने ड्रॉ किया उसको। टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करके भी नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में इट इज नॉट एक्सप्लेन। अच्छा, नाउ ऑब्जर्व, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर फ्रॉम हियर 1 मिनट विल बी 1/60th ऑफ अ डिग्री। राइट डाउन, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट विल बी 1/60th ऑफ अ डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 60 इधर आ गया। एंड सिमिलरली from here 1 second will be 1/60th of a minute। means अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वी नीड दिस व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स। डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज द रिलेशन। 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Please note down this relation. लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Without this we can't move ahead in the topic. So I hope students you must have written this relation. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें ये सब लगने वाला है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली यू विल से कि सर ये सब डिग्री, मिनट और सेकेंड ये पढ़ के हमें क्या फायदा होने वाला है मैथ्स में। ऑब्वियसली जो मैथ्स में फायदा होने वाला है आपका, ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप पढ़ाई करोगे तो। फिर आप बोलोगे कि सर ये हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, वेयर डू वी अप्लाई इन एवरीडे लाइफ। नाउ प्लीज रिमेंबर, इफ वी मे नॉट बी अप्लाइंग इन एवरीडे लाइफ दैट डज नॉट मीन कि उसका कुछ यूज नहीं है। Now let me explain you with the help of an example. अभी हमने lower standards में we have done geography. Now if you know globe, globe तो हमें सब पता है, सबको पता है, we know globe, we are familiar with the globe. Now globe में if you want to find out any direction, अगर globe पे अगर आपका किसी को आपका position find करना है तो he can find your position with the help of this degree, minute and second system. एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं DMS सिस्टम, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ज्योग्राफी में, ग्लोब में दो चीजें होती है, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से वी कैन फाइंड आउट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब, any place on the earth we can find out, but that is with the help of the degree, minute and second system. Say for example there is some place which is lying in 330 degrees 35 minutes and 20 seconds in the south. साउथ में कोई ऐसी जगह है जो 30 डिग्री 35 मिनट्स एंड 20 सेकेंड साउथ पोजीशन में आप मूव होंगे तो आप उस जगह पे पहुंचोगे। नॉर्थ पोजीशन में मूव होंगे तो आप उस एंगल से उस पोजीशन पे पहुंचोगे। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स।
प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो तो हम बाद में सीखेंगे, ये इसका एप्लीकेशन है इन एवरीडे लाइफ। देन यू नो शिप, जब शिप सी में जाता है, समुद्र में जाता है, तो नेविगेशन कैसे करता है, उसमें एक नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। देयर इज वन रेडार, नाउअडेज टेक्नोलॉजी हैज अपग्रेडेड वेरी मच, यू नो, तो उस पे एक रेडार सिस्टम लगा होता है। आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, यू नो, या मूवीज में देखा होगा, ऐसा एक कांटा है जो मूव होते रहता है, यू नो, रेडार। तो वो जो रेडार है वो शिप को बताता है नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है कि साउथ डायरेक्शन में जाना है। सी तो समुद्र कितना बड़ा है, तो हाउ विल शिप कम टू नो कि उसको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है कि साउथ डायरेक्शन में जाना है, तो कौन हेल्प करता है, डीएमएस सिस्टम, डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड सिस्टम हेल्प्स द शिप टू नेविगेट। तो इफ यू आर गोइंग इनटू नेविगेशन सिस्टम, अगर आप नेविगेशन सिस्टम सीखना चाहते हो तो उसका बेसिक ही डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ये सब उसका एप्लीकेशन हम सीखने वाले हैं एट अ लेटर स्टेज, एट हायर क्लासेस। आफ्टर 11th 12th आप इसको सीखोगे। फिर मिलिट्री में यूज होता है, आर्मी में यूज होता है। अरे आप बोलोगे मिलिट्री में कैसे यूज होता है, आर्मी में कैसे यूज होता है, व्हेन जब दो देश के बीच में झगड़ा होता है, व्हेन देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, तो वो मिसाइल फायर करते हैं, तो मिसाइल को एक एंगल देना पड़ेगा ना। सपोज इफ आई वांट टू लॉन्च अ मिसाइल, आई हैव टू गिव अ पर्टिकुलर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को उसका छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो सही पॉइंट पे जाके हिट होगा ना। तो एंगल का काम है। सिंपल, व्हेन वी प्ले क्रिकेट, सिंपल गेम ले लो आप, क्रिकेट इज वेरी वेरी फाउंड एंड वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो क्रिकेट खेलते हैं तो जो प्लेयर्स है, जब आप स्टंप पे मारते हो बॉल, तो व्हेन यू थ्रो विथ एन एंगल ना, यू थ्रो विथ 20 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, एंगल से थ्रो करते हैं बॉल को हम। तो ये सब एप्लीकेशंस है, हम एवरीडे लाइफ में उसको यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट। ठीक है, जब साइंटिस्ट है, इफ समवन ऑफ यू वांट्स टू बिकम साइंटिस्ट, जब साइंटिस्ट सैटेलाइट लॉन्च करता है, जब सैटेलाइट जाता है तो इट गोज थ्रू सम एंगल, उसको एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी पड़ती है, उसको एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, उसको एक एंगल दिया जाता है कि बाबा आपको ये एंगल पे जाना है। तो दिस इज ऑल एप्लीकेशन ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, वेयर वी डू इट इन एवरीडे लाइफ। देखो हमें सब कुछ समझ के करना है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। तो कहाँ पे अप्लाई होता है, तो होता है अप्लाई, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एप्लीकेशन पार्ट राइट नाउ। हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है फिलहाल। तो ये डिग्री रेडियन सिस्टम जो है, ये जो डिग्री और मिनट सिस्टम है, मिनट और ये जो सेकेंड वाला सिस्टम है, ये हमें याद रखना है। तो वी आर सीइंग टू सिस्टम्स राइट नाउ, hexadecimal system and circular system. Out of that I have explained you hexadecimal system, तो ये इसका detailed explanation है hexadecimal system। चलो, now let us move on to the second system, that is called as circular system। ठीक है, तो ये जो hexadecimal system का explanation है, इसका application भी मैंने आपको समझा दिया। So this is over. Now let us move on to the second system, that is called as circular system। So just give me a minute, I'll rub this off। So second type of system, let's now write down it as circular system। Circular name itself suggests, चलिए लिखिए, in this system, write down, in this system, चलो नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए, write down, in this system angles are measured in form of radians। Angles are measured in form of radians, and 1 radian
is denoted by this notation 1 to the power c। देखिए ये 1 डिग्री का नोटेशन है, दिस इज 1 डिग्री का नोटेशन एंड दिस इज 1 रेडियन का नोटेशन। So in this system, angles are measured in form of radian and 1 radian is denoted by the notation, ये 1 radian का notation है, ठीक है। चलो now let us understand, जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 डिग्री क्या होता है, now let us try to understand 1 radian क्या होता है, ठीक है। So write down definition of or meaning of 1 radian। 1 radian ऐसा लिखो आप, definition of 1 radian, write down measure of an angle, write down measure of an angle subtended, measure of an angle subtended at the center of the circle, at the center of the circle by an arc, don't worry I'll explain, आप पहले लिख लो, measure of an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to, whose length is equal to radius of the circle, is equal to the radius of the circle, radius of the circle। So measure of an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle gives us 1 radian। That measure gives us 1 radian। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, I'll explain it to you। Now what we do, we draw a circle। चलो start drawing, और पहले समझ लो फिर draw कर लेना, just have a look। Now this is the circle, ठीक है, we are familiar, we have done circles in 10th standard। Now if you observe, this is one of the ray and this is another ray, these are the two rays। Now this is the center O, ये center है, center of the circle। Now this is ray OA and this is ray OB, it intersects the circle at point A and this is intersecting at point B। तो इसको ray OA और इसको ray OB नाम दिया गया है। Now if you observe this length OA, this length OA is the radius of the circle। चलो मैं different color pen use कर लेता हूँ। OA is the radius of the circle, OB is also the radius of the circle, ठीक है, and this AB is called as the arc of the circle। Recollect, we have done it in 10th standard, arc of the circle। So AB is called as the minor arc and this is the major arc। AB is called as the minor arc or simply called as arc। Minor means छोटा वाला, छोटा वाला arc है, and this is the major arc। So I'm talking about the minor arc। Now you observe, I will explain you diagrammatically। अब ये जो radius r है, this radius r of length OA, अब ये जो radius r है ना, देखो इसको मैं खड़ा कर देता हूँ ऐसे, please do not draw or write anything right now। ये radius r ले लिया मैंने। Now this radius r I have make it to stand over here, यहाँ पे stand कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो radius r है ना, ऐसा खड़ा है, इसको मैं circle के ऊपर drop कर दूंगा। It is standing this way, I will drop this radius on the circle, on the arc। तो जब ये radius r circle के ऊपर drop हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, from here ये जो red line है, this red line now goes along the arc of the circle। ये देखो ये B लिखा है, इसको
इसको मैं जरा रब करके वापस लिख देता हूँ। दिस इज आई हैव रिटर्न बी। तो जो आर स्टैंडिंग पोजीशन में था वो आर देखो स्लीपिंग पोजीशन में आ गया एंड आर्क पे आ गया। तो लेंथ ऑफ द रेडियस is same as the length of the arc. Please try to understand. Length of the radius is same as the length of the arc, or you can say length of the arc is same as the length of the radius. So at this time, जो angle form होगा, this angle will measure 1 radian. देखो definition पढ़ते हैं वापस. Explain मैंने कर दिया है. Let us read it. 1 radian, measure of an angle subtended at the center of the circle, by an arc whose length, ये underline करता हूँ, whose length is equal to the radius of the circle. This is important. Whose length is equal to the radius of the circle. So that measure of an angle is nothing but 1 radian. ठीक है, ये 1 रेडियन मेजर का एंगल है। चलो ड्रॉ कर लो ये डायग्राम, आप ड्रॉ इट फॉर योर रेफरेंस। तो पहले जो ये आर था उसको मैंने स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा था, उसको सर्कल के ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो एंगल फॉर्म होता है ऐसे टाइम पे उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन एंगल। चलो प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है 1 रेडियन एंगल। चलो इसके बाद हमें देखना है रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, नाउ सेक्साडेसिमल सिस्टम मींस इट इज नथिंग बट डिग्री मेजर एंड दिस इज नथिंग बट रेडियन मेजर। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं और सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलो राइट डाउन रिलेशन बिटवीन, ऐसा लिखो आप आफ्टर दिस डायग्राम, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, ऐसा लिखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। चाहे जितने स्टार आप इसको मार्क कर लो, इसके बगैर हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। ये जो रिलेशन अभी मैं आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज राइट डाउन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 by pi degrees and put a box over this। और चाहे जितने स्टार मार्क कर लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू राइट डाउन, आई विल टेक डाउन द एग्जांपल आल्सो। लिख लीजिए इसको आप। तो आई होप यू मस्ट हैव रिटन द स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ठीक है, अब 1 डिग्री ये याद रखना है आपको, 1 degree is equal to pi by 180 radians and 1 radian is equal to 180 by pi degrees। So what we have to remember, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एंगल विल बी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो एंगल होगा उसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाइस वर्सा वे, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो एंगल होगा उसको हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज हाउ यू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। फिर एक आध एग्जांपल देख लेंगे हम इसके ऊपर कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। अभी चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक डाउन वन एग्जांपल ईच। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ से फॉर एग्जांपल इफ इट इज गिवन टू मी 30 डिग्रीज। अब डिग्री सिस्टम तो हम 10th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ चुके हैं। ओके, सर्कुलर सिस्टम इज न्यू टू अस।
अभी क्या करना है, देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्रीज, तो व्हाट विल वी डू, 30 डिग्रीज कन्वर्टेड टू रेडियन, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, तो 30 डिग्रीज विल बी 30 इंटू पाई बाय 180 कन्वर्टेड टू रेडियन। बहुत ही आसान है, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस होता है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंगल है उसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट सिंपल इट इज ना। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 कन्वर्टेड टू रेडियंस, सिंबल्स डालो आप, ये रेडियन का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है, दिस इज इक्वल टू, नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, वी नो 3 6 18, so what is the answer, so it is pi by 6 radians, so 30 degree is nothing but equal to pi by 6 radians, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, 30 डिग्रीज बोलो या पाई बाय 6 रेडियंस बोलो, एक ही बात है, खाली उसका जो सिस्टम है मेजरिंग का वो अलग है, दिस इज डिग्री मेजर एंड दिस इज रेडियन मेजर। जैसे आप बोलते हो ना रुपीज एंड पैसा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, अब आप बोलो मेरे पास 1 रुपीज है या आप बोलो मेरे पास 100 पैसा है, मीनिंग तो वही है ना, वैसे ही है, आप बोलो 30 डिग्रीज है या पाई बाय 6 रेडियंस है, मीनिंग एक ही है। तो चलो प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, अभी हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल, लेट अस कन्वर्ट 60 डिग्री, अच्छा रेडियन को कन्वर्ट करना है ना, तो चलो हम ले लेते हैं पाई बाय 3 रेडियंस, पाई बाय 3 रेडियंस, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लिया, तो पाई बाय 3, so now see what will happen, pi by 3 remaining same, now see how to convert radian to degree, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई कन्वर्टेड टू डिग्रीज। देखो 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्रीज, तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, अब क्या होगा, ये पाई इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो आंसर इज नथिंग बट 60 डिग्री, दैट्स इट, ओवर। तो पाई बाय 3 रेडियन मींस इट इज नथिंग बट इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज मींस इट इज नथिंग बट पाई बाय 6 रेडियंस। हो गया, ये कन्वर्जन फैक्टर है, डिग्री टू रेडियन भी करके बता दिया मैंने आपको, रेडियन टू डिग्री भी करके बता दिया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द एक्सरसाइज दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है दैट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये बट ये सब आप लिख लो, बट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, ठीक है। तो whatever we have done today, each and every concept plays a very important role, चाहे वो डिग्री टू मिनट वाला हो, मिनट टू सेकेंड्स वाला हो, चाहे वो रिलेशन बिटवीन डिग्री टू रेडियन और या रेडियन टू डिग्री वाला हो, या वो टाइप्स ऑफ एंगल्स हो, व्हाट इज एन एंगल, एवरीथिंग एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसेप्ट्स 11th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स तो क्या चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 30 डिग्री के जगह पे आपको दे देंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, प्रॉब्लम चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट जो है वो तो सेम रहने वाला है ना, कन्वर्जन फैक्टर, ओके, प्लीज नोट डाउन।